Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College Ghaziabad, and today I want to discuss function points measurement matrices and cyclometric complexity used for the software testing and all, and how to create the control flow graph also, right. What is the objective of function point matrix basically? First point is analysis, how to analyze the software or any complexity of software, right, based on the functionality of that project and modules and sub modules, right. The measures of the software of quality of the functionality. मेन की पॉइंट इज व्हाट, फंक्शनैलिटी. जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में फ़ोटो अपलोड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, कंप्रेस करना है, राइट, या फिर लॉगिन में लॉगिन करना है फॉरगेट पासवर्ड का, दैट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ लॉगिन पेज. साइन अप करना है, दैट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ लॉगिन पेज, राइट. अगेन आप चैट विंडो पे जाते हैं तो टाइप्स ऑफ चैटिंग है, टेक्स्ट चैट, वीडियो चैट, ऑडियो चैट, या मेनी मोर एप्लीकेशन. इन ट्रांजेक्शन में या ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं. आप मल्टीपल विंडोज़ टाइप का आप फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल व्यूज़ चेंज कर सकते हैं, मोबाइल व्यू, विंडोज़ व्यू, डेस्कटॉप व्यू, है ना. ऑल आर द फंक्शनैलिटी इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, एंड दीज फंक्शनैलिटी make a software project critical based on the functionality, whatever functionality you expected from your client side, right. Requested actually qualifying the functionality requested for the provide the customer based on the primary or logical design. जो भी requirement customer side से आएगी, जिसको आपने बिजनेस एनालिस्ट ने BRS डॉक्यूमेंट में क्रिएट करा था, ऑन दैट बेसिस जब आप उसको बाइफ्रिकेट करेंगे मॉड्यूल्स में, दैट इज व्हेन यू मेकिंग द SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑन दैट टाइम ईच एंड एवरी मॉड्यूल की आप फंक्शनैलिटी डिसाइड करेंगे, उसके प्रॉपर फंक्शनैलिटी का इवेल्युएशन करेंगे कि विच वन इज क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स, राइट. एंड आफ्टर दैट मेजर्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन द इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, राइट. अगेन measure of software development and maintenance consistently across the project and the organization, right. And what are the difference between function points and line of codes? Actually the technology and platform independent, right, and availability from early requirement phase. अब फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं फंक्शनैलिटीज़ बनानी है, चाहे आपने कोड नहीं करा है, बट आपको ये पता लग जाता है एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट की कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन किस किस मॉड्यूल में रिक्वायर्ड होंगे. जब आप क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते तब भी आप मेथड्स, मतलब क्लास नेम, डेटा टाइप्स एंड मेथड्स आप डिफाइन करते हैं, राइट. तो ये लाइन ऑफ कोड किस पे डिपेंड करेगा, प्लेटफॉर्म पे, किस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, राइट. कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव यूनिट ऑफ मेजर्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एंड objectively defined software application from the customer perspective, right, and objectively defined as a series of software application from the customers, not the technician perspective, right, is expressed in the terms of users can readily understand about their software, or are the with the help of function point, not used by the line of code, right. What are the steps followed in the function point counting when you counting the function points? Then for determine the type of count, three types. First one is enhancement project function point count, and application function point count, and development project function point count, right. These three key areas, and identify counting scopes and application of boundaries, and count data function, how many data function used in your project modules, and transactional functions also, and determine the unadjusted function point count. ये भी important, इसकी वजह से आपका uncertainty decide होती है किसी प्रोजेक्ट की, right. And determine the value adjustment factor and calculate the adjusted function count. These are the steps. And how to calculate it basically? The function point application functional unit are showing the figure shown in below. What is that basically? That is what? User module,
other application and users and right. The internal log files and external interfaces, these are the FPAs functional point units. जितने भी आपके कैलकुलेट हैं, यहाँ पे इंक्वायरीज हैं, यहाँ पे इनपुट्स आउटपुट्स जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इनपुट जा रहा है, राइट. ऑन दैट बेसिस ऑफ फंक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है उसको आप काउंट कर सकते हैं लाइक दिस. तो बेसिकली क्या है, इंटरनल इनपुट्स EI, external output that is EO, external inquiry that is EQ and external logical files कितनी हैं ILF and external interfaces file कितनी हैं EIF, राइट. अब 3, 4 जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं. एवरेज क्या होगा एंड हाई क्या होगा. अगर इंटरनल इनपुट्स 3 हैं दैट इज लो, एवरेज क्या चल जाएगा 4, बट हाई कितने हैं 6 एंड सो ऑन. अगर एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं आपके तो in that case low 4, average 5, high 7 and so on, right. These are the factors of function point units according to these bifurcation, right. Again one more important thing is what, complexity, cyclomatic complexity. आप लोग कितनी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ चुके हैं अब तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. अब बहुत डिफरेंस है. साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हमें यूज़ करने की. अभी तक आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा होगा कि टोटल प्रोग्राम कितना स्पेस लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. एंड व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच टाइम टू टेक फॉर एग्जीक्यूशन, है ना. मल्टीपल टाइम से अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं आप लोग, राइट. बट व्हाट इज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज अ डिफरेंट थिंग. अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में कोई पूछता है या कहीं कुछ, तो आप कभी उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप उसको मैप ना करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड यूज हुआ है, राइट. दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रोग्राम एंड फॉर द टेस्टिंग ओनली, फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ओनली. How many number of minimum test cases required for the testing, that is identified by the cyclometric complexity. मतलब किसी भी प्रोग्राम की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जितनी होगी, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस उतने ही बनेंगे. बहुत लेमैन लैंग्वेज अगर आप समझें तो, बाकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ. बट किसी भी प्रोग्राम की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आएगी, दैट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फॉर टेस्ट दैट प्रोग्राम, राइट. देखते हैं क्या है. साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मे बी डिफाइंस एज, it is a software metric that measure the logical complexity of the program code and it count the number of decision in the given program code, number of decisions, ध्यान दीजिएगा, right. and the measures of the number of linearly dependent paths and through the program. number of linear paths कितने हैं, number of decisions कितने हैं, based on that अगर ये number of decisions ज़्यादा हैं, मतलब if else आप लगा रखा if right else wrong या यस और नो, इन दैट केस उतने नंबर ऑफ टेस्ट केस ज़्यादा लिखने पड़ेंगे आपको. कोई लीनियर प्रोग्राम है तो एक ही टेस्ट केस लिखना पड़ेगा. तो ऑल दैट बेसिस वी कैलकुलेट द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स थ्रू द प्रोग्राम कोड, राइट. एंड इट डिपेंडेंट्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ डिसीजंस इन द प्रोग्राम कोड. तो पहला क्या आया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, IP, independent path and decisions, right. and intersection or deletion of functional statement from the code does not affect the cyclometric complexity, right. जो भी intermediate codes हैं, जो intersection है functions का, वो cyclometric complexity को affect नहीं करते हैं. it is always greater than or equal to 1. कोई भी प्रोग्राम होगा वो भी हमेशा इक्वल टू 1 और मोर देन 1 होगा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा. क्यों, क्योंकि आप स्मॉलेस्ट कोई भी एक भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अगर कोई प्रोग्राम का आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखना तो उसको भी आप कंपाइल रन कराएंगे, टेस्ट करेंगे, तो मिनिमम 1 तो रहेगा ही रहेगा, एक टेस्ट केस तो रहेगा ही रहेगा, राइट. आगे देखते हैं कैसे होता है ये. कुछ साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस रेंज में आती हैं तो क्या पैरामीटर्स होंगे. अगर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 1 to 10 है, देन स्ट्रक्चर और वेल रिटन कोड एंड हाई टेस्टेबिलिटी एंड लेस कॉस्ट एंड एफर्ट. मतलब अगर किसी भी प्रोग्राम की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 1 to 10 आती है तो
आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाएगा, वेल रिटन कोड माना जाएगा, आपका प्रोग्रामिंग अच्छी मानी जाएगी और उसकी टेस्टेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी, हाई टेस्टेबल रहेगा वो कोड एंड लेस कॉस्ट एंड एफर्ट लगेगा, राइट। अगर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी किसी प्रोग्राम की 10 to 20 आती है, इन दैट केस कॉम्प्लेक्स कोड होगा, वो मीडियम टेस्टेबिलिटी होगी एंड मीडियम कॉस्ट एंड एफर्ट, राइट। अगेन if your cyclometric complexity of program is lie between 20 to 40, in that case very complex code, low testability and cost and high effort and high is high. Again is the greater than 20, in that case high complex code, not at all testable and very high cost and efforts. तो अगर किसी भी प्रोग्राम का आप साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकेंगे तो आप ये जान सकेंगे वो कोड कितना अच्छा है, राइट, बेस्ड ऑन द दीज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज। तो आपको बताते हैं कि कितने मेथड्स हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी? बेसिकली इट हेल्प्स डिटरमाइन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इट इज एन इंपॉर्टेंट टू इंडिकेटर द प्रोग्राम कोड्स readability, maintainability and portability. It helps the developers and testers to determine the independent paths execution, and it helps to focus more on one uncovered paths. अगर कोई टेस्टर ने किसी पाथ को टेस्ट केस लिखना भूल गया है, इन दैट केस साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये रियलाइज़ कराएगी कि ये वाला पाथ अभी, जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं आईटी कंपनीज़ में जो कि ये टेस्ट करते हैं कि सारे पाथ चेक हो गए हैं कि नहीं, एटलीस्ट वंस, इन दैट केस वो उससे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मैप कर देते हैं। नंबर ऑफ जितने इंडिपेंडेंट लीनियर पाथ्स हैं, अगर कोई मैप नहीं हुआ उसको रेड जोन दिखाएगा वो सॉफ्टवेयर। इन दैट केस कभी इसके टेस्ट केस नहीं जनरेट हुए हैं या इसको टेस्ट नहीं किया गया है, राइट। ये बहुत हेल्प करता है आपको, राइट, इन आईटी इंडस्ट्री। अगेन इट इवेलुएट्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन और प्रोग्राम. It provide the assurance, it's help to quality assurance based on part of the testing, assurance to provide developers that all the paths have been tested at least once, at least one time तो सारे path test होने ही चाहिए. ये assurance कौन देगा? Cyclometric complexity of that program. Okay, how to calculate the cyclometric complexity? Cyclometric complexity is calculated using the control flow representation of the program, that is called CFG, control flow graph, right. And in control flow representation of the program code is what? Nodes present part of the code having no branches. Edges represent the possible control flow transfer during the program execution, and there are three commonly used method calculated the cyclometric complexity. Mainly three methods use होते हैं cyclometric complexity कैलकुलेट करने के लिए. अगर आपको किसी भी प्रोग्राम की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, आंसर सेम आएगा. व्हाट आर द थ्री मेथड्स हियर? फर्स्ट वन इज व्हाट? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्लोज रीजन इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ प्लस 1. अगर आप किसी भी प्रोग्राम का साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ अगर आप बना लें, जस्ट लाइक फ्लो चार्ट, मैं बताता हूँ कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है. ऑन दैट बेसिस नंबर ऑफ क्लोज रीजन्स, नंबर ऑफ लूप्स, number of closed regions plus 1, that is cyclometric complexity of that program. And another method is what? Cyclometric complexity is equal to E minus n plus 2. E represents what? Total number of edge in the CFG and total number of nodes in the CFG. E minus n plus 2. And what is method number 3? Cyclometric complexity is equal to P plus 1, right. P is the total number of predicted node contained in the control flow graph. तो ये तीनों मेथड्स आपको समझ में यही आए होंगे. आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ की. तो जो भी प्रोग्राम है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है. अगर कंट्रोल फ्लो ग्राफ आपका बन गया है तो आप चाहे उसके नोड और एज से भी निकाल सकते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ लूप्स काउंट करके निकाल सकते हैं +1 करके, या प्रेडिकेट नोड्स को भी +1 कर देंगे तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. तीनों इक्वल होंगी. चेक करते हैं कैसे. फॉर दिस प्रोग्राम एक्चुअली, ओके, फर्स्ट नोट इज व्हाट? प्रेडिक्टेड नोड और कंडीशनल नोड्स. जहाँ कंडीशंस होगी उस नोड को क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टेड नोड. एंड अच्छा, जो नंबर ऑफ लूप्स हैं, जहाँ प्रेडिक्टेड नोड होगा वहीं लूप बनेगा, ये भी ध्यान दीजिए.
चाहे प्रेडिक्टेड नोड बोलिए +1, चाहे नंबर ऑफ लूप्स बोलिए +1, एक ही बात है, समझने की थोड़ा सा डिफरेंस है बस. दे गिविंग द rise the two branches in the control flow graph, right? Okay, what is the pseudo code basically? If a is equal to 354 and if b is greater than c, then a is equal to b, else a is equal to c. if इस प्रोग्राम को आप इसमें कन्वर्ट करेंगे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में. दिस इज अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम. तो किसमें आपका इफ एल्स कितनी बार आया था? 1 टाइम. ये इफ पार्ट है, ये एल्स पार्ट है, राइट? तो ये इफ वाला है यस, और ये नो वाला है. ये क्या है? इफ एल्स, राइट? तो अब ये जो डायमंड शेप आपका डिसीजन बॉक्स बन रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टेड नोड. तो कितना प्रेडिक्टेड नोड है? 1 एंड 1 and 2 है प्रेडिक्टेड नोड, राइट? एंड नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 1 लूप इज हियर एंड 2 लूप इज हियर. तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 2. और प्रेडिक्टेड नोड कितने हैं? 1 and 2 डिसीजन मेकिंग में, राइट? तो बेस्ड ऑन दैट आप कुछ भी ले सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देंगे. फार्मूला क्या है बेसिकली? अगर हम फर्स्ट फार्मूला देखें क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्लोज रीजन इज व्हाट? कंट्रोल फ्लो ग्राफ में. तो नंबर ऑफ लूप कितने थे? 2. देखते हैं 1 and 2, दोनों में 2 है तो 2 + 1, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? 3. एंड नंबर ऑफ एज माइनस नोड +2. तो नंबर ऑफ एज और नोड देखते हैं कितने हैं. नोड कितने हैं? सब पे नंबरिंग पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7. तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए? 7. एज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एज कितनी हुई? 8, राइट? तो 8 माइनस 7 + 2, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम इज व्हाट? 3. अगेन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रेडिक्टेड नोड +1. 2 नोड थे प्रेडिक्टेड, यस और नो वाले. तो अगेन साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 + 1 इज इक्वल टू 3. एंड व्हाट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ बेसिकली? तो CFG इज व्हाट? इज डिफाइंड एज अ finite set n node and the finite set E of H and edge I comma j, right? And E connects two nodes Ni and J is capital N. We often write graph G is equal to n comma 1. N is the represented node and E is represented edge, to denote by the control flow graph by G, capital G, and N is the Nn is the node and edge. Okay. In the flow of program, each of basic blocks becomes a node. जितने basic blocks हैं उसको क्या बोलेंगे? node. And edge are used to indicate the flow of the control between the blocks. जो हमारे instructions हैं उनमें जो data input जा रहा है उसके according हम control flow का उनके बीच में प्रोग्राम का फ्लो दिखाएंगे, जैसे फ्लो चार्ट आप बनाते थे, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारे नोड्स हैं और उसको जो कनेक्ट करने वाले एजेस हैं वो फ्लो दिखा रही हैं, और नोड क्या दिखा रहे हैं? पर्टिकुलर ब्लॉक्स, प्रोग्राम के ब्लॉक्स, बेसिक ब्लॉक्स, राइट? एंड यू ऑल्सो एज्यूम दैट देयर आर द नोड्स स्टार्ट in n and there is incoming another node is what? End. That is no outgoing edge, right? What is the control flow graph actually? Control flow graph is what? Suppose the start node is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and n. Start and end also included, right? Again start is what? An int x comma y power float input, right? If y is less than 0, again if y is less than 0 is true, then power is equal to minus y. If y is not less than 0, then power is equal to y. Again z is equal to 1, right? And while loop लगाया, again while loop में क्या है basically? अगर इस power is does not equal to 0, then true is what? z is equal to z into x and power is equal to minus 1. Otherwise अगर if is condition false, then
इफ y इज लेस देन 0 देन क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी z इज इक्वल टू 1/z, अदरवाइज आउटपुट सीधे z, दैट इज अ control flow graph of that program, right. Again same CFG में हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ में हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ स्टेटमेंट्स हमने रिमूव कर दिए। अब जो प्रीवियस प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम, इसका हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ रिमूव करके जो प्रोग्राम था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंट्रोल फ्लो ग्राफ में। अब इसमें देखिए पूरा प्रोग्राम रिटाइटेड है प्रॉपरली, राइट, बट इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, नोड्स और एजेस में, दिस इज कॉल्ड CFG, दिस वन, राइट। स्टार्ट, अब कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली 1 2 3 4 सब पे नंबरिंग पड़ी हुई है, राइट, 5 6 7 8 एंड 9, हम स्टार्ट और एंड को काउंट नहीं करते, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए, 9। अब देखते हैं इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए, 9, सब पे नंबरिंग पड़ी हुई है। एज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay. Then add is equal to 12 or 11, right. Then what is the complexity of that program, first of all with the help of E minus n plus 2, E is what, 11 minus 9 plus 2, 2 plus 2 is equal to what, 4। तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, 4। अब इसका मीनिंग क्या है 4 आने का, ये बताऊंगा अभी आपको, बट इसी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स, इसके पहले वाले साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कितनी आई थी, 3, दिस वन 3 आई थी ना। अब देखिए 3 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लीनियर पाथ कितने, एक पाथ ये है, मतलब अगर x की वैल्यू कुछ होगी, दिस वन a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना पूरा प्रोग्राम। तो अब देखते हैं 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये वाले पाथ पे अगर आप कोई वैल्यू देंगे डायरेक्ट आपका क्या प्रिंट होगा, x। अगर यहाँ पे अगर ट्रू होगा तब तो मतलब नंबर ऑफ एक टेस्ट केस इसके लिए होगा, x इज इक्वल टू समथिंग, अगेन a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग। तो ओनली 3 मिनिमम कितने टेस्ट केस बनेंगे, मिनिमम 3, मिनिमम कितने टेस्ट केस बनेंगे, तो यहां पे एक नई चीज पता लगी क्या, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस minimum number of test case is equal to cyclometric complexity is equal to what, number of regions in CFG plus 1 is equal to what। अगर हम एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो क्या होगा, देखिए minimum number of test cases is equal to cyclometric complexity is equal to E minus n plus 2, E n is what, number of edge and nodes in control flow graph is equal to, this is not, that is equal to what, number of regions plus 1 is what, cyclometric complexity, and equal to number of predicates node plus 1,
राइट, इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ, CFG कभी भूलना नहीं। ये सारी चीज़ क्या है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टेस्टिंग पर्पज एक्चुअली, दैट इज कैलकुलेटिंग द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी प्रोग्राम। एंड वो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने होंगे। जैसे नेक्स्ट वाले की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 4 आई थी, इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई 4, तो एक टेस्ट क्या बनेगा, जो एक टेस्ट बनेगा ऐसा जाएगा पाथ, राइट, फॉर वन टेस्ट केस। अनदर टेस्ट केस दिस वन, और एक अनदर टेस्ट केस आएगा जो यहाँ से मूव करके सीधे लीनियर आ जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। और एक टेस्ट केस आएगा जो यहाँ से आएगा बट इधर से मूव कर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो टोटल 4 नंबर ऑफ टेस्ट केस बनेंगे। अगर मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस मतलब ईच एंड एवरी लीनियर पाथ के लिए नंबर ऑफ लीनियर पाथ कितने आ गए, 4 आ गए ना, तो चारों पाथ पे एटलीस्ट एक टाइम तो रन करा के देखना चाहिए कि इस पाथ में कोई एरर तो नहीं है। आ रही बात समझ में? दिस इज द बेसिक नीड ऑफ साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टेस्टिंग, राइट। अगर हम इसमें टेस्ट केस बनाना चाहें तो कितने बनेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ y इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू ले लो -1, दैट इज ए 1 नंबर ऑफ टेस्ट केस। तो लेस देन 0 होगी तो क्या होगी, y की पावर -y आ जाएगा, राइट, दैट इज 1 टेस्ट केस। ये इस वाले पाथ में आ गया। ओके, अगेन इफ z इज इक्वल टू 1 हो गया दोनों केस में, दूसरा टेस्ट केस क्या बनेगा, अगर फॉल्स है तो y इज इक्वल टू 1, इस वाले पाथ पे भी आ जाएगा। अब इस वाले पाथ के पाथ क्या है ऑप्शन, तो टेस्ट केस बन गए। अगेन टेस्ट केस क्या राइट करेंगे हम, वाइल पावर इज नॉट इक्वल टू 0, तो पावर क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया अगेन पावर इज इक्वल टू 1। तो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ट्रू होगा, तो हमारे इस वाले पाथ पे आ जाएगा, कवर हो गया, राइट। और अगेन ये किस पे आएगा, अगर इक्वल टू 0 है तो पावर इज इक्वल टू 0। देखिए सारे पाथ कवर हो गए, राइट। तो कितने टेस्ट केस बने, 4, और सारे पाथ को इसने कवर कर लिया, कोई पाथ रिमेनिंग नहीं रहा। हाँ, और भी टेस्ट केसेस आप बना सकते हैं फॉर योर क्वालिटी पर्पज टेस्टिंग में, बट मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डिसाइडेड बाय द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच एंड एवरी पाथ कवर्ड एट वंस, right, that is the basic need of cyclometric complexity. So today I have covered what are the function points, what is the function point measures, what are the need of function points, and how to know external inputs, external outputs, external inquiries and external logic files and external interfaces files, etc., right. And what is the cyclometric complexity, what are the properties of cyclometric complexity, right, based on the decision of the program code and independent paths, linear paths actually, and on which cyclometric complexity how to know standard of code, quality of code actually, if lies between 1 to 10, that is well written code, well structured, high quality, less cost and less effort. And again if lies between 10 to 20, it means what, complex code, medium testability and medium cost and efforts, right. And again all the parameters I have defined in your 20 to, if greater than 20, this is worst case actually, very poor coding. And all the cover today, cyclometric, how to calculate the cyclometric complexity, all the 3 parameters, 3 methods 1, 2 and 3, and what are the need of cyclometric complexity, how to calculate it, how to draw the control flow graph, and how to calculate the cyclometric complexity, and what are the need of this. Okay guys, thank you.